میں بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے ہو چکے ہیں۔ لیمو 780، ادرک 700، لہسن 600، پیاز 160، ٹماٹر 140 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 240، اروی 220، بھنڈی 140، آلو 120، بینگن 100 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ آلو بخارا 400، آڑو 350، سیب 280، امرود 220، آم 200 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 200 اور درجہ دوم 140 روپے فی درجن میں دستیاب ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے اس میں 3 سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی کی گئی ہیں۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں ٹماٹر 5 روپے مہنگا کر کے 110 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ تاہم مارکیٹ میں ٹماٹر درجہ اول جو ہے وہ 140 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ پیاز جو ہے وہ 135 کے برعکس 160 روپے فی کلو تک، لہسن چائنا ہے 540 کے برعکس 600 روپے اور ادرک چائنا 585 کے برعکس 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس میں ٹماٹر ہے جو کہ 5 روپے تک مہنگا ہوا، اور پالک جو ہے 10 روپے مہنگی کر کے 70 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں پالک کی فروخت جو ہے وہ 70 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 12 روپے مہنگی کر کے 190 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں آج مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں شملہ مرچ کی فروخت 140 سے 150 روپے فی کلو تک فروخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اروی 170 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 300 کے برعکس 440 روپے فی کلو اور گھیا کدو 70 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں ہے، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ 3 پھلوں میں آج اضافہ کیا گیا جو سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے اس میں سیب درجہ اول 6 روپے مہنگا کر کے 200 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن مارکیٹ میں 200 کے برعکس 280 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امرود درجہ اول 7 روپے مہنگا کر کے 177 روپے فی کلو سرکاری ریٹ لسٹ میں آج مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کھجور ایرانی ہے اس کی قیمت میں بھی آج 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 460 سے قیمت بڑھا کر 465 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 550 روپے فی کلو تک کھجور ایرانی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اور دیگر تمام پھل بھی جو ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، جس میں آم چونسا کالا 130 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک، آڑو 265 کے برعکس 350 روپے فی کلو تک اور آلو بخارا 325 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں ہے، لیکن اس کے برعکس 400 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بجلی کا استعمال غریب کے لیے بنا وبال۔ بجلی 1 روپیہ 74 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی، اضافہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے لیے کیا گیا ہے، اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ملک بھر کے بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی، حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل تا جون 2024 کی سہ ماہی کی مد میں کیا گیا، جس کی وصولی ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں ہوگی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اضافے سے صارفین کو 43 ارب 23 کروڑ روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ نیپرا نے 6 ستمبر کو اضافے کی منظوری دے کر فیصلہ وفاقی حکومت کو ارسال کیا تھا۔ بجلی بلوں کے مد میں مختلف وفاقی اور صوبائی ادارے لیسکو کے اربوں روپے کے نادہندہ نکلے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے نادہندہ وفاق اور صوبائی اداروں کی فہرست جاری کر دی۔ ٹی ایم ایس 5 ارب روپے کی نادہندگی کے ساتھ سرِ فہرست آ گئے۔ متعدد سرکاری محکمے اور ادارے بجلی کے بلوں کی مد میں کروڑوں روپے کے نادہندہ نکلے۔ لیسکو کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق ٹی ایم ایس 5,999 ملین روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ واسا لاہور کے ذمے 4,100 ملین روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے۔ پنجاب ایریگیشن اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ 636 ملین روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ محکمہ پولیس کے ذمے 555 ملین روپے سے زائد کی رقم واجب الادا ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور 454 ملین روپے، ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل ہسپتال لاہور 432 ملین
मिलियन रुपए, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कसूर लेस्को का 352 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 237 मिलियन रुपए और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी 227 मिलियन रुपए से जायद की नादहिंदा है। महकमा जेल पंजाब के जिम्मे 216 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 209 मिलियन रुपए से जायद की नादहिंदा है। मियो अस्पताल लाहौर 169 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है और पंजाब बिल्डिंग्स 150 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। वजारत रेलवे लेस्को का 440 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। महकमा PWD पाकिस्तान 96 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। कैबिनेट सेक्रेटरीट 69 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज 33 मिलियन रुपए और SE बिल्डिंग्स वाबडा हाउस भी 33 मिलियन रुपए से जायद का नादहिंदा है। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बिजली चोरी की अफरियत बेकाबू, लेस्को की तमाम कार्रवाइयां और कोशिशें रायगढ़ जाने लगी। FIA और लेस्को मिलकर भी बिजली चोरी खत्म ना कर सके। लेस्को और FIA के बुलंद बांग दावे कारकर्दगी ना होने के बराबर। अगस्त में भी लाइन लॉसेस कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए। बिजली चोरी से हर माह सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होने लगा। पंजाब हुकूमत का पैकेज भी लाइन लॉसेस कम ना कर सका। जराये का कहना है लेस्को के मुख्तलिफ सब डिवीजनों में 5 से 41% तक लाइन लॉसेस रिकॉर्ड किए गए। लेस्को के 3rd सर्कल और शेखपुरा सर्कल के लॉसेस में होशरुबा इजाफा हुआ। अगस्त में लेस्को के मजमूई लॉसेस 0.90% बढ़ गए। मुख्तलिफ सब डिवीजन्स को मिलने वाले यूनिट्स में से 5 से 40% तक चोरी यूनिवर्सल नंबर्स पर गलत डिटेक्शन खत्म की जाए तो लॉसेस में मजीद इजाफा होगा। बिजली चोर पकड़े जाने के बाद भी बिजली चोरी करते रहते हैं। FIA की टीमें सिर्फ कागजी कार्रवाई में मसरूफ हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 584 रुपए किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर की कीमतें भी बरकरार हैं। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 304 रुपए पर बरकरार है। आपको बताया जा रहा है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 584 रुपए किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर की कीमतें भी इसी तरह हैं। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 304 रुपए पर बरकरार है। आपको बताया जा रहा है ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 584 रुपए किलो की सतह पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर की कीमतें भी उसी तरह मौजूद हैं। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 304 रुपए पर है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत के आज जो सरकारी नाश्तानामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत आज जो सरकारी नाश्तानामे जारी किए गए उसमें 584 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फार्मी अंडों की कीमतों में भी कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। 304 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 9000 रुपए की मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है उसमें भी कोई जो है वो रद्द-ओ-बदल नहीं देखने को मिल रहा और सरकारी रिलीज के मुताबिक फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 375 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 399 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 403 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें सरकारी नस्लनामों तक की मुस्तहकम है, क्योंकि मार्केट में जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो 584 के बरक्स 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। बागबानपुरा के रिहायशियों ने महंगाई के खिलाफ पंजाब असम्बली के सामने फैसल चौक पर एहतजाज किया। शुरकाए एहतजाज ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना है हुकूमत महंगाई में दिन ब दिन इजाफा कर रही है और हमारे टैक्सों पर अयाशी की जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मारोड फैसल चौक पर बागबानपुरा के रिहायशियों की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बागबानपुरा के रिहायशियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। शहरियों का कहना था हुकूमत महंगाई में दिन ब दिन इजाफा कर रही है और हमारे टैक्सों पर अयाशी की जा रही है। हम स्कूल की फीसें अदा करें या बिजली का बिल दें। हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें हमारी खुराक सस्ती चाहिए, हमें हर चीज़ सस्ती चाहिए, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती चाहिए। हमें पेट्रोल जो है ना वो बहुत महंगा है, हमारे ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला हो रहा है।
हम लोग चाहते हैं कि ये लोग महंगाई को ख़त्म करें। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है और ट्यूशन भी छोड़ दी है, इसके बावजूद कि मैंने कहा है मैं फ्री पढ़ा दूंगी, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं आप फ्री पढ़ा तो देंगी लेकिन रोटी हमें नहीं फ्री मिलेगी। अब बच्चे स्कूल छोड़ के जो है ना वो कामों पे जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि महंगाई में कमी की जाए और अपनी मरात बढ़ाने के बजाय मुल्क का कर्जा उतारा जाए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, मानता हूँ सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात की कमी है और मुस्तकिल सरबराहान मौजूद नहीं। पहली मरतबा टेस्ट लेकर अफसरान की तैनाती कर रही हैं। जामियात में भी जल्द वाइस चांसलर्स की तैनाती कर दी जाएगी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का लाहौर में क्वीन मैरी कॉलेज का दौरा। राना सिकंदर हयात ने क्लासरूम्स में जाकर तालिबात से मसाइल दरियाफ्त किए। तालिबात ने सूबाई वजीर तालीम को कॉलेज में स्पोर्ट्स सरगर्मियां न होने की शिकायत की। तालिबात ने राना सिकंदर हयात को कंप्यूटर और होम इकनॉमिक्स लैब के फंक्शनल न होने का भी बताया। सूबाई वजीर तालीम की तालिबात को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मानता हूँ सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात की कमी है और मुस्तकिल सरबराहान मौजूद नहीं। पहली मर्तबा एजुकेशन अथॉरिटी में टेस्ट लेकर अफसरान को तैनात कर रहे हैं। 2-3 सालों में पंजाब के तालीमी इदारों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। जामियात में भी जल्द वाइस चांसलर्स की तैनाती कर दी जाएगी। पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनिशिएटिव लिया कि बगैर सफारिश ज़िलों में COs, DOs, डेप्यूटीज़ लगाए जाएं। समरीज हमने फॉरवर्ड कर दी हैं, कुछ CM ऑफिस हैं, कुछ गवर्नर साहब के पास पहुंच रही हैं एंड इंशाल्लाह ऑल VCs करीबन 32 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें एक्टिंग चार्ज में से हमने 26 या 28 के कर ली हैं। 2-4 री एडवर्टाइज हो रही हैं। लेट्स होप एंड प्रे दैट इंशाल्लाह बाय मैक्सिमम इन द नेक्स्ट 2 weeks we should have them all in place. सूबाई वजीर तालीम ने तालिबात की शिकायत पर MD वासा को टेलीफोन करके क्वीन मैरी स्कूल में 2 रोज़ के अंदर साफ पानी फराहम करने और फौरी पानी का कनेक्शन लगाने की हिदायत की है।